Assalamualaikum everyone, I'm Isha Sifraz and I'll be your host for the next few minutes. Today we have Hadija Babar, the president of Health Club. Then we have our vice president, both male and female. First we have Mr. Sharfuddin and then we have Miss Abiha. Talking about the history of the Health Club 2012 में बना and our patron was Dr. Irfan Bashir. उसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट आए दैट वाज अब्दुल रहमान, जिन्होंने 2.5 ईयर का टेन्योर अपना कंप्लीट किया. उसके बाद असीसुल्लाह वाज द सेकंड प्रेसिडेंट और उन्होंने भी 2.5 ईयर में अपना टेन्योर कंप्लीट किया. हेल्थ क्लब बेसिकली सेमिनार्स अरेंज करने के लिए, वर्कशॉप्स और सिम्पोजियम अरेंज करने के लिए बनाया गया ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अमंग पीपल और एक गैप को ख़त्म किया जा सके रेगुलेटरी अथॉरिटी के दरमियान एंड स्टूडेंट्स के दरमियान. उसके बाद हेल्थ क्लब जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं उसके लिए हम लोग इंटरनेशनल एंड नेशनल सिम्पोजियम्स करवा रहे हैं. फर्स्ट हम हदीजा से बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम हदीजा, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड. ओके हदीजा, हमें प्लीज़ बताइएगा हेल्थ क्लब क्या है एंड व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? Basically, Isha Health and Pharmacy Club is one of the oldest society in the UCP, with more than 500 plus student body in our society or club, I should say. The agenda of our society is to share and aware the youth or the community that we have in our UCP and students of UCP as well. So what we do is, it takes no time for a drug to turn into a poison. So we promote the rational therapy of the drugs, and we arrange different education seminars that promotes, or rather I will say that educates the student body of UCP about the rational therapy use, and from these students, the community as well. Besides this, we encourage the students and our members of society to do the volunteer work and to maximize their participation and volunteer themselves for the betterment, for the better community, and for a better healthy community. And beside that, we have different workshops and seminars, training programs, competitions that promote the skills and polish the grooming of our pharmacy students or 15,000 plus students of the UCP, and different health related workshops in various disciplines of health and various disciplines of our pharmacy field as well. So this is all what we do, Isha. Okay, Ms. Abiha, next we have a question for you. Where do you see Health Club in the upcoming years? जैसे कि ईशा आपने शुरू में बताया कि हेल्थ क्लब हैज अ decade long history. It has come a very long way since the beginning of it. And in the upcoming years, I see it evolving into something even greater. I see it being on the top of all the other societies, and I see it taking steps to avoid all those health-related problems that are now prevalent in our generation, especially. And I see it evolve into something even more greater. Okay, sounds good, Abiha. Then I have a question for you, Mr. Sharf. अबीहा ने अभी कुछ गोल्स मेंशन किए हैं. आपके क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है फिलहाल के आप इस गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब हम वॉलंटियरशिप्स के मौके देंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे वॉलंटियरशिप्स के, जिसमें मेडिकल कैंप्स आ जाते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल नेशनल सिम्पोजियम्स आ जाते हैं. ये सब के सब जो होंगे वो एक वॉलंटियरशिप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. बच्चे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज को एनहांस कर पाएंगे. वो एक जो होता है ट्रेडिशनल के बच्चा काम करने से हेजिटेट करता है, वो उनके अंदर हेजिटेशन खत्म होगी, वो पूरी तरह से अपने एक ऑब्लिगेटरी काम करेंगे. तो हम वॉलंटियरशिप्स के लिए मेडिकल कैंप्स वगैरह करेंगे. इसके अलावा हम एजुकेशनल कंटेंट भी करें ताकि अवेयरनेस हो सके, क्योंकि आपको पता है कि यूएस में मोर देन 28% ऑफ द एडमिशंस इन द हॉस्पिटल जो होते हैं वो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. तो हमारी रैशनल ड्रग थेरेपी की अवेयरनेस वगैरह और सब कुछ करके हम लोगों के अंदर एक रैशनल थेरेपी की आप कह सकते हैं कि रुझान को लाना चाहते हैं कि ताकि एक ट्रेंड आ जाए, ताकि रैशनल थेरेपी को प्रमोट कर सकते हैं. इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड हमने इंस्पायरिंग फेसेस सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट हम हर चीज़ को फ्रॉम वॉलंटियरशिप टू एजुकेशनल कंटेंट हमारा मौका दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आगे आ सके, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज को बिल्ड कर सके. Okay, thank you, Mr. Sharf. Every organization have some core values. Would you like to elaborate us कि आपकी core values क्या हैं?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम समझते हैं वी बिलीव इज़ कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जब एक चेंज आ रहा हो आप उसको एक्सेप्ट करो, और उसके साथ साथ बिकॉज ये इनोवेशन का ज़माना है और आप देख सकते हैं कि सेमिनार्स और टॉक शोज़ ये तो हम लोग करवाते आते हैं ऑन रिसर्च ऑन डिफरेंट हेल्थ डेज और अवेयरनेस की चीज़ों पे। इन टॉक शोज़ और इन सब के साथ साथ व्हाट वी ऐड डिफरेंट इनोवेशन एज वेल, कि हम कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, other walks, and through all this creativity we encourage कि एक innovation आए और we encourage कि एक change आए और tolerance हो इंसान में कि वो इस change के साथ grow कर सके। and beside this हमारा जो motto है वो society का एक major motto तो ये है कि आप selflessly serve करते हो अपनी community को। तो serving the community selflessly, volunteer yourself कि as a professional, as a pharmacist भी आप एक health care professional के part होते हुए एक major जो triad है health care का उसका एक हिस्सा होते हुए it's your major duty to serve your community. So it is also in our core values कि हम ये जानते हैं कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करना, अपने मुआशरे को सर्व करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू सर्विंग दिस इट्स ऑल्सो वन ऑफ आवर कोर वैल्यूज, एंड एडिंग टू दिस वी ऑल्सो encourage the creativity in our members, because I have already told you that we have 500 plus members currently in our groups. So तो उनके अंदर creativity को encourage करना, because with 500 different members I'm talking about 500 different minds, and I am talking about कि वो 500 different mind किस तरह सोचते हैं। तो they brought up different ideas, different creative, innovative ways through which we can spread and share our agenda of better healthy community. So yes, I believe that these are also one of the major core values of our society. So one of the major core values, जैसे खदीजा ने बताया, is also commitment. If you are committed to bring a change, if you are committed to volunteer yourself, if you are committed to do social work, to make people's lives better in some way or another, then only you can bring a change. And that is also one of our core values of our society. इसके अलावा आपको पता है honesty is the best policy. If you are honest with yourself, with your own cultural values, with your religion, only then you can serve in a community like this. Okay, thank you, Biha and Hadija. Indeed, I really appreciate it. Can you walk us through the organizational structure? ईशा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जनरल मेंबर्स आते हैं। जनरल मेंबर्स की हमारे पास एक HR की टीम है जो कि काफ़ी विजिलेंट है और सर्वेलेंस के इन्वॉल्व है, एक्टिव मेंबर्स को उनको स्क्रूटनाइज करती है। इसके बाद अगर कोई एक्टिव मेंबर हमारे पास सपोज आ भी जाता है तो हम उसको अपने प्रमोट करते हैं कोर टीम की तरफ। कोर टीम में हमने आगे सब टीम्स बनाई हुई है जो कि इंडिविजुअल हमारे कोऑर्डिनेटर्स 2 हैं और एक HR मैनेजर है, वो उनको अपने लीड कर रहे हैं, सब ग्रुप्स की तरह पे लीड कर रहे हैं, वो उनको वेरियस एक्टिविटीज़ कराते हैं और उसमें हमने पॉइंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये पॉइंट सिस्टम हर बंदे को एक एक्टिविटी में हमने रखा हुआ है कि किसी को एक्टिविटी का 2 पॉइंट हो जाएगा, किसी एक्टिविटी का 1 पॉइंट भी हो सकता है। और अगर कोई बंदा एक मंथ में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स को सिक्योर कर लेता है तो हम उसको बेस्ट एक्टिव मेंबर या बेस्ट कोर मेंबर का भी एक सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारी हायरार्की में वेकेंट सीट भी आ जाए तो हम उसी कोर मेंबर को आगे हायरार्की में प्रमोट कर देते हैं। कोर टीम्स के बाद हमारे पास आती है हायरार्की मेंबर्स और हायरार्की टीम आती है। तो इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के, यानी आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेशंस में लिया हुआ है, एक प्लानिंग में किया हुआ है, इसके बाद हमारे पास सेक्रेटरीज हैं, फिर हमारे पास लास्ट पे कोऑर्डिनेटर्स आते हैं। तो थ्रू आउट ये हमारा सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि जनरल मेंबर से कोर मेंबर से फिर हमारे पास हायरार्की मेंबर्स पे जाता है। Okay, thank you, Shuraf. That's an excellent strategy. Then, what are the problems you are addressing in the community? What is your role? How are you serving in the community? बेसिकली ईशा, जो हेल्थ की अम्ब्रेला आती है ना, इट्स वेरी वास्ट, ठीक है, और ये बहुत डिफरेंट फील्ड्स और एस्पेक्ट्स को एट द सेम टाइम कवर कर रही होती है। आई विल नॉट बी रॉन्ग कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग एंड इफ आई एम अवेयरिंग समथिंग टू गिविंग नॉलेज टू, व्हेन यू आर गेटिंग अवेयरनेस फ्रॉम मी, तो योर फैमिली विल गेट अवेयरनेस फ्रॉम यू, ठीक है। सो इफ वी इवन टारगेट द 15,000 प्लस स्टूडेंट्स करंटली विद द UCP, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टारगेटिंग देयर 15,000 प्लस फैमिलीज इज वेल। तो ये एक स्टेप आपको कम्युनिटी की तरफ ले जाता है, ठीक है। एक तो आप अवेयर करते हो, ठीक है, आप अवेयरनेस देते हो डिफरेंट डिजीज की, एंड यू बिलीव मी ईशा कि देयर आर पीपल जिनको बेसिक डिजीजेस का ही कुछ पता नहीं है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल हेल्थ में नहीं जाऊँ, अगर मैं ऊपर से ही आपको क्लीन की बात करूँ, जो डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़ की बात कर लें आप, हाइपरटेंशन, देयर आर प्लेंटी नंबर ऑफ लोग क्योंकि उनका कोई साइंस से बैकग्राउंड नहीं था तो दे बिलीव कि उनका जानना ज़रूरी नहीं होता। बट इट इज़ ट्रूली रॉन्ग कि इवन इफ़ यू आर नॉट मेजर इन साइंस और इट्स सब, तो इन चीज़ों, ये बेसिक डिजीज़ के बाद में आपको नो हाउ होनी चाहिए।
चाहिए, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंट है पाकिस्तान में, आपको पता है। और इसके अलावा एक तो चले मैंने आपको अवेयर किया इस डिजीज़ पे, और इस तरह आपने जाके आप एक एसेट हो गए अपनी फैमिली का, दैट यू नो समथिंग ना, तो यू विल टेल योर फैमिली, और योर फैमिली कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट दैट कुड हैव बीन हैपन फ्रॉम दैट थेरेपी इफ नॉट टेकन। तो एक तो ये चीज हो गई, बाय आवर सेमिनार्स, बाय आवर टॉक, बाय इवन आई बिलीव कि हम एक पोस्टर भी जनरेट अगर अपनी सोशल मीडिया टीम पे करें, अगर उसको भी ज्यादा ना समझे 40 रीच आए उसकी, 40 बच्चे उससे पढ़े, तो व्हाट 40 फैमिलीज वी आर टारगेटिंग। सो आई बिलीव इट इज वेरी नोबल थिंग टू डू। ये तो मैंने आपको बात की कि व्हाट वी डू बाय आवर सेमिनार्स, आवर टॉक शोज और इस तरह की चीजें। बिसाइड दिस बच्चों के अंदर रिसर्च को प्रमोट करते हैं हम लोग। वी हैव डिफरेंट वर्कशॉप्स और ये सब चीज़ें जो कि बच्चों को रिसर्च के बारे में बताती हैं। तो अल्टीमेटली रिसर्च से बेनिफिट किसको आता है? कम्युनिटी को। आपको पता है रिसर्च की ही इसलिए जाती है कि टू फाइंड द वेज थ्रू विच यू कैन सर्व और इम्प्रूव योर कम्युनिटी। इसको छोड़ के अगर हम अब रिसर्च से हट के अपनी दूसरी डोमेन की तरफ जाएं, दैट इज आवर कैंप्स, फ्री मेडिकल कैंप्स। हम लोग जो है हेल्थ क्लब हैज डन अ नंबर ऑफ डजन्स ऑफ हेल्थ कैंप्स इन डिफरेंट अनप्रिविलेज्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, एंड आई हैव ऑल्सो बिन पार्ट ऑफ दैट। एंड यू बिलीव मी ईशा, के वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ कि वो एक तो थेरेपी प्रॉपर अपनी कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो उनको डॉक्टर से बाकायदा कंसल्टेशन दी जाती है और मेडिसिन उनका चेकअप किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस उनको दी जाती है दैट कुड हेल्प इन द डिजीज प्रोपेगेशन। इसके साथ साथ वी फार्मासिस्ट व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड कंसल्टेशन देयर। और आप यकीन करें कि लोगों को बेसिक ही नहीं पता होता कि हाउ टू टेक दैट मेडिसिन। तो वी टेक आवर फार्मासिस्ट, जो हमारे पास बडिंग यंग फार्मासिस्ट होते हैं, वी टेक देम टू दोज एरियाज, और फिर वो जाके वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं। एंड इसका अल्टीमेट बेनिफिट हेल्थ केयर को भी, हेल्थ केयर सेंटर्स को भी आता है और पेशेंट को भी मिलता है। तो फ्री मेडिकल कैंप्स, और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगी कि ये पिछले ही 2 वीक्स प्रायर रमज़ान हम लोग गए थे विद दिया फाउंडेशन और बाय ट्रांसपेरेंट हैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग गए थे। सियालकोट के पास एक गांव था, वहाँ पे फ्री मेडिकल क्या कहते हैं सर्विस हमने प्रोवाइड किया, एंड आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। और उस वक्त तकरीबन वी हैड दैट कैंप वहाँ पे 6 to 7 आवर्स, और हमारा जो टारगेट मैंने वहाँ पे पेशेंट आउटकम देखा वो आपके पास 400 प्लस था। तो 400 प्लस लोगों को हमारे बच्चों, हमारे यूसीपी के बच्चों ने जाके वहाँ पे उनको हेल्प किया, वॉलंटियर किया, सेल्फलेस अपने आप को वहाँ पे पेश किया कि आप वहाँ पे जाके उनको मदद करें उनकी, और उनको कंसल्टेशंस दें, और फिर उनको मेडिकेशन प्रोवाइड की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सीइंग कि इसका रिजल्ट आपकी कम्युनिटी पे आता है। इफ वी आर डूइंग दिस फॉर द कम्युनिटी, तो it's a good, so these are the things that we do for our community, and that's how we solve these problems. That's an amazing job. Okay, what are the recent changes and how Health Club has evolved since 2012? This time round we brought about a few changes. उसमें से कुछ हमने सीरीज स्टार्ट की हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 सीरीज इस दफ़ा स्टार्ट की हैं, उसको बहुत अच्छा आउटकम मिला। The first one is the health fact series. We post a health fact or an interesting fact and we make a post out of it and we post it in the groups, ठीक है। फिर उसको हम प्रमोट करते हैं ताकि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस क्रिएट हो, ठीक है, थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। द सेकंड सीरीज वी लॉन्च्ड वाज इंस्पायरिंग फेसेस। अब इंस्पायरिंग फेसेस में ये है कि कोई एक साइंटिस्ट जिनकी कोई एनिवर्सरी आती है, या फिर कोई ऐसी इनोवेशन या फिर कोई डिस्कवरी या कोई चीज़ उन्होंने एक्सप्लोर की हो, तो उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जी ये फलां साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था इन दिनों, ठीक है। That's how we create our Inspiring Faces series. और उसके बाद हमारी थर्ड सीरीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हेल्थ रिलेटेड फील्ड से हैं, तो हमने ड्रग्स की अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होती है। तो उसके अंदर हम कोई भी एक स्पेसिफिक ड्रग को लेते हैं और उसके बारे में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई ऐसा नोन फैक्ट जो कि लोगों को नहीं इतना पता, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम प्रमोट करते हैं। That's how we do it. Okay, thank you Biha. So Mr. Shiv, हमें बताएंगे अब तक आप कौन कौन से इवेंट्स अरेंज कर चुके हैं and how did it go? हमने नवंबर में सबसे पहला अपना इवेंट हायरकीशिप को प्रेसिडेंसी वाइस प्रेसिडेंसी अज्यूम करने के बाद कराया था। वो था ओबेसिटी से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी रिलेटेड था इवेंट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिसमें डीजी हेल्थ वगैरह भी आए थे। उन्होंने काफ़ी लंबी ओबेसिटी से रिलेटेड बात की थी कि वो किस तरह प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहला हमारा हुआ था नवंबर लास्ट में। इसके अलावा दिसंबर के लास्ट में हमने एक और इवेंट कराया था जिसमें विलिशा से डायरेक्टर्स वगैरह को बुलाया था जो कि डायबिटीज से रिलेटेड बात करें हमसे, तो वो आए थे। इसके अलावा हमने जनवरी में इवेंट करवाया था नॉर्वे, तो करियर पाथवेज इन नॉर्वे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि
ट्रेंड इस वक्त है कि फार्मासिस्ट दूसरी जगहों पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, लोग भी बाहर से निकलने की ट्राई कर रहे हैं, ओवरसीज जाने की। तो हमने एक फुल फ्लैज इवेंट वेबिनार रूम में करवाया था, जिसमें आके हमारे एक फार्मासिस्ट थे जो नॉर्वे से, तो उन्होंने आगे बताया था कि क्या आप किस प्रोसीजर से होकर आप लोग एक फार्मासिस्ट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं नॉर्वे में। इसके अलावा इसी थीम को हमने कंटिन्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में। हमारे क्योंकि एक फैकल्टी मेंबर भी थे सर सरसद, तो उन्होंने एक इवेंट करवाया था वेबिनार रूम में उधर ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने भी इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स बताए थे कि इनको फॉलो करके बच्चे ऑस्ट्रेलियन का जो टेस्ट है कैप्स वो देकर ऑस्ट्रेलिया में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च में हमने एक मेडिकल कैंप करवाया था, जिसको खदीजा ने उसको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट किया है, और अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक पोस्टर कॉम्पिटिशन और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन भी कराने लगे। तो ये हमारा सारा इंसाइट है अप टू नवंबर तक से अप्रैल तक। Thank you guys. I appreciate your work. You guys are doing an amazing job and thank you for your time. आज थे हमारे साथ हेल्थ एंड फार्मेसी क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्होंने अपनी डोमेन, अपनी वर्किंग और अपनी किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया उनके बारे में आगाह किया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।